यस स्टूडेंट्स, तो आज हम देखेंगे दैट इज चैप्टर नंबर 10 ऑफ योर बुक, दैट इज स्ट्रेट लाइन. Straight line is related to coordinate geometry. In your previous classes you have seen 2D coordinate geometry. स्ट्रेट लाइन में हम जो 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमने जो इन प्रीवियस क्लासेस में देखी है, लाइक 10th 9th क्लास, all things can be used here, all formulas or any other thing what you have seen in your earlier classes in coordinate geometry that will be used here. And moreover we will see about the equations of line. How many types of lines are there, like slope form, intercept form, and any other perpendicular form is also there. So about straight line we are going to see in this chapter. So first I will tell you something about the theory related to your previous class. In our previous classes we have seen coordinate geometry. Coordinate geometry is one more part of mathematics, like algebra, like trigonometry, like statistics. So coordinate geometry is another part of mathematics which is related to axis. Yeah, these things we know it very well. This is x-axis. Two lines intersect each other at 90 degree. They are called axis. This horizontal line is called x-axis and this vertical line is called y-axis. And where they meet, it is called origin. You all know about it. 1, 2, minus 1, minus 2. This is 1, 2, positive y direction. This is minus 1. This is minus 2, negative y direction. Yes. Can you tell me what are the points of this coordinate? This point. What are the coordinates of this point? It is 2 and 0. It is x-axis पर -1 और y पे न ऊपर है न नीचे है. It is 0. Again it is -2 0. It is 1 0. तो we can see कि हम x-axis पर हैं और इसमें हमेशा y वाला पार्ट क्या होता है? 0. These all things we have seen in earlier classes. x-axis पर हमेशा y वाला पार्ट क्या होता है? 0. We can write here on x-axis always y equal to 0. Similarly, suppose we want to see the coordinate of this point. This is x-axis पर न इधर है न इधर है. नंबर लाइन पर बीच में 0 होता है. Axis are treated as number line, तो 0 and y पर positive 2. Similarly, this coordinate is 0 1 and this is x पर 0 y पर -1. This is 0 -2. हम y एक्सिस पर हैं और ये जितने भी पॉइंट है y एक्सिस पर we can see that their x वाला पार्ट is 0, means their axis is 0. It means जो हम y एक्सिस पर जो पॉइंट होते हैं उन पर हमेशा x वाला पार्ट 0 होता है. तो we can say on y axis always x equal to 0. In mathematics it is said that equation of x-axis is y equal to 0. Equation of x-axis, x-axis क्या है? एक लाइन है, तो लाइन की डेफिनेटली इक्वेशन होती है. यही हम देखने वाले हैं पूरे चैप्टर में. तो x-axis पर y वाला पार्ट हमेशा 0 होता है. तो in mathematics it is said that on x equation of x-axis is y equal to 0. Similarly, equation of y-axis is x equal to 0 in mathematics. Reason, you have seen the reason. Similarly, in our smaller classes we have seen the distance formula. Distance formula is very important formula from your 10th class. What is distance formula? Distance formula. What is distance formula? कि line joining A and B, and suppose we are given coordinates of both the points x1 y1
and another point B, that is x2 y2. So we can find distance between A and B, and you all know about it. Distance between A and B is denoted by AB, that is distance formula. And what is that? x1 minus x2 whole square, y1 minus y2 whole square. This you have seen in your 10th class. Yes. One more formula was there in your 10th class, that is section formula in coordinate geometry. So one more thing, that is section formula. Section. What is section formula? Suppose the line is given again A, B. Coordinates of A are given, that is x1, y1. Similarly, coordinates of B are given, that is x2, y2. And suppose one point is lying on AB and it is dividing this line AB in ratio m1 ratio m2. One line is there, both the ends of the lines we are given, means coordinates of both the ends we are given, and one point is lying on this line, that is dividing this line in ratio m1 and m2. So we can find P by section formula. And what is that formula? m1 x2, उल्टा पुल्टा के नाम से हम इसे जानते हैं, 1 के साथ 2, 2 के साथ 1. And you have seen it in your 10th class, m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2. And for y same, m1 y2, 1 के साथ 2, 2 के साथ 1, m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2. This is your section formula. By using this formula, we can find the point of this coordinate which is dividing this line in ratio m1 and m2. Definitely ratio should be there, है ना? और ratio नहीं होता है तो हम क्या करते हैं वो भी मैं बताऊंगा. This also you have seen in your 10th class. And this is internal division. This is internal division. Means P is dividing this line from here. And one external division is also there. एक्सटर्नल डिवीजन में आपको कुछ नहीं करना है, दोनों प्लस की जगह क्या लगा देना है? माइनस लगा देना है. ये जो दोनों प्लस नजर आ रहे हैं आपको, इनकी जगह क्या लगा देना है? हमें माइनस लगा देना है. दैट विल बी योर एक्सटर्नल डिवीजन. एंड सपोज सिंपल सेक्शन फार्मूला इज गिवन फॉर यूजिंग, तो यू विल यूज इंटरनल डिवीजन. फॉर एक्सटर्नल डिवीजन इट विल बी स्पेसिफाइड इन योर सम दैट इट इज एक्सटर्नल डिवीजन. So there is no need to go for external division if you are not given anything. Yes. So one more thing in this section formula, that is very important thing. तो जैसा मैंने आपको बताया कि सेक्शन फार्मूला को यूज करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? हमारे पास होना चाहिए रेशियो. कभी कभी रेशियो नहीं दिया जाता है, तो एक चीज आपने देखी है 10th क्लास में कि इफ रेशियो इज not given, then assume it k is to 1. Whenever you are not given ratio, and suppose he is asking about ratio, so what you will assume it? You will assume it k is to 1. Okay. And for finding k, some conditions will be given to us. We will follow those conditions, and by using those conditions, by using that condition, we can find k, and in the end ratio will be there. So these types of sums you have seen in your 10th class, or definitely some sums will be there in your 11th class also. So I will tell those sums also. तो आपको क्या करना है? Again I am telling you कि जब आपको रेशियो नहीं दिया जाए तो आप क्या करेंगे? उसे k is to 1 assume करेंगे. इसी के साथ एक और फार्मूला मैं बताना चाहूंगा आपको, दैट इज मिड पॉइंट फार्मूला. स्टूडेंट्स, मिड पॉइंट फार्मूला. मिड पॉइंट फार्मूला, अगेन वन लाइन इज देयर AB, both the coordinates we are given x1 y1 and x2 y2, and P is midpoint of this line. So directly we can find midpoint. आपको कुछ नहीं करना है, x वाला मींस x वाले कोऑर्डिनेट मींस जो एब्सिसास है बोथ दी कोऑर्डिनेट्स की, उन्हें ऐड करके 2 का डिवाइड करना है. सिमिलरली y1 और y2 को ऐड करना है और 2 का डिवाइड करना है. तो x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 by 2.
and by using this formula you can find midpoint of this line. Yes, और ये सारी चीजें आप 10th क्लास में देख चुके हैं, 9th क्लास में भी somewhere you have seen it. एक बात जो मैंने आपको बताई कि x एक्सिस पर y वाला पार्ट 0 होता है, y एक्सिस पर x वाला पार्ट 0 होता है. हाउ प्रैक्टिकली वी कैन यूज दिस थिंग. प्रैक्टिकली हमें इसे यूज करना होगा. कभी कभी हमें एज्यूम करना होता है कि x एक्सिस पर कोई पॉइंट है, वो हमें एज्यूम करना होगा. तो x एक्सिस पर जो पॉइंट होगा हमें उसकी खास बात पता है कि उसका y वाला पार्ट क्या होता है, 0. तो वी विल एज्यूम इट पॉइंट k0. why? बिकॉज x एक्सिस पर जो पॉइंट होता है उसका y वाला पार्ट 0 होने वाला है. सिमिलरली सपोज यू आर गिवन a point lying on y axis, और आपको एज्यूम करना है कि ऐसा पॉइंट जो कि y एक्सिस पे लाई करता है. तो हमें पता है कि y एक्सिस पर x वाला पार्ट हमेशा 0 होता है. तो वी विल एज्यूम इट 0k, और k की जगह आप कुछ भी वेरिएबल ले सकते हैं. तो 0k, why 0k? बिकॉज ऑन y एक्सिस वी हैव सीन दैट x वाला पार्ट हमेशा 0 होता है. तो प्रैक्टिकली वो जो चीज है इस तरह से यूज की जाएगी. नाउ आई एम कमिंग इन योर 11th क्लास. 11th क्लास में इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं स्ट्रेट लाइन. और लाइन में जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है वो होता है स्लोप ऑफ लाइन. तो यस, हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट लाइन. और सबसे पहले इसमें जो बताया जाएगा वो है स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन. ठीक है, स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन. तो और इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन. तो चलिए देखिए, सपोज दिस इज अ लाइन एंड दिस लाइन इज दिस इज x एक्सिस, this is y axis, and this is your line, suppose, and this line is making angle theta with the positive direction of x axis. Again I am saying this line is making angle theta with the positive direction of x axis. इस एंगल का हम tan ले लेंगे, that is called slope or gradient of a line, and this is denoted by small m. Okay students, small m से हम slope और gradient को generally denote करते हैं. slope of a line, tangent, we can say it tangent. Yes, again I am telling you, so what is the definition of slope? That line is making angle theta with the positive direction of x axis. उस एंगल का हम क्या ले लेंगे, tan ले लेंगे, उसकी टेंजेंट ले लेंगे. दैट इज कॉल्ड स्लोप ऑफ अ लाइन और ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन. इंक्लिनेशन थीटा है यहाँ पर, उसका हम tan ले लेंगे, और स्लोप ऑफ अ लाइन इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m. तो इसमें कुछ केसेस देख सकते हैं हम. केस 1, सपोज line is parallel to x axis. ये जो आपकी लाइन है ये इस x axis का पैरेलल नजर आ रही है. इसकी स्लोप हम पता करें. यहाँ पे केस 1 है, when line is parallel to x axis. तो ये आप देखें इस डायग्राम में, ये हमारा x एक्सिस है और हमारी लाइन इसके पैरेलल है. पैरेलल है तो इसने x एक्सिस के साथ क्या कोई एंगल बनाया? नहीं. यहाँ पर हम लिख सकते हैं here थीटा इक्वल टू 0. कोई एंगल नहीं है इस तरह से, यहाँ पर बिल्कुल भी एंगल नहीं है. इट मींस थीटा इक्वल टू 0. सो आपकी स्लोप क्या हो जाएगी? स्लोप होती है इस एंगल का हम tan ले लेते हैं. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 0? दैट इज 0. वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट इट इज कि जब लाइन x एक्सिस के पैरेलल होती है लाइक दिस, तो उसकी जो स्लोप होगी वो क्या होगी? 0 होगी. बिकॉज देयर इज एंगल ऑफ दिस लाइन
with the x axis is 0 and tan 0 is 0. So slope of this line which is parallel to x axis is 0. और आप एक और बात इसमें देखें कि जो लाइन x एक्सिस के पैरेलल है वो y एक्सिस के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ परपेंडिकुलर टू y एक्सिस। यस, तो एक ऐसी लाइन जो x एक्सिस के पैरेलल है और y एक्सिस के परपेंडिकुलर है, ऑब्वियसली उसकी जो स्लोप होगी क्या होगी, 0 होगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रीजन और ये बातें 12th तक आपके काम में आती है। इसमें एक और केस है, चलिए वो केस देखते हैं। तो स्लोप के बारे में एक बार और मैं बता दूं आपको कि कोई लाइन पॉजिटिव x डायरेक्शन से जो एंगल बनाती है उस एंगल का यदि हम tan ले लेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं उस लाइन की। इसमें हमने फर्स्ट केस देखा कि लाइन विच इज पैरेलल टू x एक्सिस। अनदर केस, केस नंबर 2, when line is perpendicular to x axis, और जो लाइन x एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी वो y एक्सिस के क्या होगी, पैरेलल होगी। आप देखें इस डायग्राम में, दिस इज प्लेन, कार्टेशियन प्लेन, और आपकी लाइन क्या है, x एक्सिस के परपेंडिकुलर, मींस लाइक दिस। क्लियरली आप देख सकते हैं कि जो आपकी लाइन है ये x एक्सिस के तो परपेंडिकुलर है पर ये y एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। तो यहाँ लाइन ने x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से क्या एंगल बनाया, 90 डिग्री। सो व्हाट इज योर स्लोप, हम इस एंगल का क्या ले लेते हैं, tan ले लेते हैं, tan 90 डिग्री। व्हाट इज tan 90 डिग्री, इनफाइनाइट। और practically we will write it 1/0 or 2/0. So you can say that line which is parallel to x axis, उसकी जो स्लोप होगी वो क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। क्लियर स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हम स्लोप के बारे में बात कर सकते हैं। एक बार फिर बता दूं कि कोई लाइन x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से जो एंगल बनाती है उस एंगल का हम tan ले लेते हैं, दैट इज कॉल्ड स्लोप ऑफ दैट लाइन। और इसमें हमने दो केसेस देखे, दो इंपॉर्टेंट केसेस देखे। पहला केस था कि लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस, तो फिर क्या हो जाएगा, उसकी स्लोप क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और व्हेन लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस और परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, तो उसकी स्लोप क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी, क्योंकि वो x एक्सिस से 90 डिग्री का एंगल बना रही है और tan 90 क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। इसके बाद इसमें जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस आती है, स्ट्रेट लाइन की जो डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं वो हम देखेंगे। एक फॉर्म जो जनरल फॉर्म है लाइन की, उससे तो आप अच्छी तरह जानते ही हैं, वो आपने हर क्लास में देखा है 7th 8th 9th 10th, दैट इज ax plus by plus c equal to 0। जनरल इस तरह की लाइन होती है आपकी, फॉर एग्जांपल x minus 2y plus 1 equal to 0, 2x plus 3y equal to 6। These all are the lines, linear equation in two variable। ये वर्ड आप अच्छी तरह जानते हैं, in smaller classes we have seen it। तो इसमें एक x वाली टर्म होती है, एक y वाली टर्म होती है और एक कांस्टेंट टर्म होती है। तो जनरल फॉर्म से तो हम अच्छी तरह परिचित हैं, we all know about the general form of line, but we are going to see some more forms of straight line in this chapter। तो look at here, different types of lines। मेजर 3 तरह की आपकी लाइन होती है। उसमें पहली जो फॉर्म होती है वो होती है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इसका नाम इसलिए है क्योंकि इस फॉर्म में आपको स्लोप भी नजर आएगी और y एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट है वो भी, लाइन ने जो इंटरसेप्ट काटा y एक्सिस पे वो भी नजर आएगा। तो इसलिए इसे हम बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। और इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है y इक्वल टू mx प्लस c। यस स्टूडेंट्स, y इक्वल टू mx प्लस c। व्हाट इज m हियर,